السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ یاسمین الطاف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ستاروں کی بات وینس کے ساتھ. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو گیسٹ ہیں ایسٹرولوجر فرقان حیدر صاحب. ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں فرقان حیدر صاحب جو آپ کو چیزیں بتاتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بات پتھر کی لکیر ہو یا اوتھینٹک بات ہو. یہ ہم ستاروں کی چالیں دیکھ کر سولر سسٹم کو دیکھتے ہوئے جو ساری چیزیں پریڈکٹ کی جاتی ہیں، تو یہ جسٹ ایک پریڈکشن ہے. ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، باقی کرنے والی ذات وہ خدا کی ذات ہے. تو ناظرین آئیے پروگرام کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی فرقان صاحب، کیا کہیں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا سارے سٹارز کے لیے؟ بس لمحہ با لمحہ تو چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک ویک کے اوپر جاتے ہیں جی تو اتنا باریکی سے تو ہم نہیں کر سکتے. تو ایریز کے لیے کچھ مختلف کیفیات نظر آ رہی ہیں اس ہفتے، اور وہ ویسے تو سوشل ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، صحیح. لیکن میں کچھ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑی تنہائی کی تلاش میں رہیں گے. اچھا. اور ان باتوں سے پریشان ہوں گے کہ یہ ہر جگہ ہمارے پیچھے بھیڑیں کیوں آ جاتی ہیں. صحیح. تو کچھ ان کے پاس ایسے ٹاسک ہوں گے یا کچھ اس قسم کی خواہشات ہوں گی کہ وہ تھوڑی پرائیویسی ڈھونڈیں گے کہ لوگ ہمیں چھوڑیں، اور وہ یا ان کے جو خاص دوست ہیں کوئی کسی ٹارگیٹ کے اوپر کام کرنا چاہیں گے جس میں ان کو آگے چل کے کامیابی بھی حاصل ہوگی. صحیح. اصل میں ایریز جو ہوتے ہیں وہ سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرا انہیں کوئی مشورہ دے. بالکل. یا جو ان کے خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں یا ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ عموماً یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتا نہیں رہے ہیں، ہم سے مشورہ نہیں لے رہے ہیں، اور نہ جانے اپنی جلد باز فطرت کی وجہ سے کیا کرنے والے ہیں. لیکن یہ ایریز اس دفعہ بالکل اپنے مزاج سے ہٹ کے تھوڑی سی تنہائی اور علیحدگی اور خاموشی کی خواہش رکھیں گے کہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں، اتنا نہ گھیریں. ابھی کوئی لیڈرشپ کے موڈ میں نہیں ہے، نہ کوئی گیدرنگ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ خاص وجہ تو بظاہر تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن کچھ پارٹنر کے ساتھ جو ہے ان کا کنیکشن بڑا اچھا نظر آ رہا ہے. اچھا. کہ جو ان کے فرینڈس ہیں یا کاروباری پارٹنر ہیں یا ایون یہ کہ گھر کے اندر جو فیملی ہے، اسپاؤزز، وہ بھی آپس میں کوئی سیکرٹلی کچھ کام کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، جس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. تو کیونکہ پلینٹس کی پوزیشن اور جو ان کی ہاؤس پلیسمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے، تو میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھی ہی چیز ہے. صحیح. البتہ وہ اس وقت مدد لینے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں گے اور لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. تو وہ آگے بڑھیں، بس ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویل وشز ہیں ان کے لیے، اچھی چیزیں. اس کے علاوہ کوئی ان کی مطلب ایسی کوئی خاص پریشانی، فائنینشلی پرابلمز یا ٹریولنگ کا تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ تھوڑے سے ریش ہو سکتے ہیں، کچھ اوور اسپوکن ہو سکتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو دور رکھنے کے لیے وہ کوئی تیزی اختیار کر سکتے ہیں. اوکے. یہ ایسا وقت ہوگا کہ ایریز جو ہیں وہ سوشلائز ہونے سے گریز کریں گے اپنے کچھ خاص ٹارگیٹس کی وجہ سے. باقی اوور آل تو اچھا ہے وقت، باقی اچھا ہی ہے یہ ویک. چلے اچھی بات ہے. ایریز کے بعد جیمنائی. ایریز کے بعد جو ہے وہ ٹورس ہوتا ہے، ٹورس. اور ٹورس کے لیے بھی اچھے دن ہیں. فوکس رکھیں گے وہ اپنے فرینڈس کے اوپر، اور وہ جو ہے وہ عموماً تو لوگوں پہ پریشر ڈالنا پسند کرتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بہتر وہ مینیج کر سکتے ہیں لوگوں کی لائف کو یا گیدرنگز کو دوسرا نہیں کر سکتا ہے. جی. اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اس لیے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ لو کے اوپر ہوتا ہے، اخلاقیات کے اوپر ہوتا ہے، کہ جب بھی وہ کوئی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو چیزوں کو ہارمونائز کر رہے ہوتے ہیں. جی. اور لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جھگڑا یا تلخی ان چیزوں کو جو ہے اس کے لیے سیکریفائز کرنا چاہیے. اور وہ خود بھی جو ہے وہ اس کی مثال بنتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ سختیوں کی وجہ سے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے وہ کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا. اپنے معاملات، دوستوں، رہائش یا کاروباری، تو کچھ اس قسم کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ایموشنلی سینسٹیو ہوں. اوکے. اور مسلسل قربانی دیتے ہوئے، مسلسل لوگوں کو سمجھاتے ہوئے وہ یہ فیصلے کریں کہ نہیں اب ہمیں ماحول کو چینج کرنا چاہیے، اپنی جگہ بدلنی چاہیے، یا اپنی جاب چینج کرنی چاہیے، یا گھر کے اندر اپنا کمرہ الگ کرنا چاہیے. تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ اثرات جو ہے وہ خاص طور پہ مارس کے میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ
कुछ संजीदगी आ रही है, और ये संजीदगी किसी ना किसी लेवल पे हर बुर्ज के लोगों में आएगी, अच्छा, और लेकिन मुख्तलिफ हवालों से, क्योंकि घर की ओनरशिप बदल जाती है सही, और प्लेनेट की रूलरशिप बदल जाती है। अच्छा, तो टॉरस जो है वो अपनी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर, एकेडमिक जो उनकी एक्टिविटीज हैं जी, उसके ऊपर वो पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे और टाइम वेस्ट होने को रोकेंगे। अच्छा, तो इस तरह उनके अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस आएंगी कि वो उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जिनसे उनका वक्त बर्बाद हो रहा है, या उनका पैसा ज़ाय हो रहा है, या उनका इमेज बिगड़ रहा है, सही, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो फोकस करते हैं। तो अच्छी होप रखते हैं कि वो उसको इतना करें कि दूसरा अपनी इंसल्ट ना महसूस इंसल्ट करे, ना फील कर, राइट, और लोगों को भी चाहिए कि वो एरीज को और टॉरस को थोड़ा सा स्पेस दें, सही, ताकि वो जो प्राइवेसी मांग रहे हैं या वो अपने कामों को खुद से खुद देखना से चाह रहे देखना हैं, चाह रहे हैं तो वो तो उनको अपने थोड़ा सा- एंड से सब ठीक कर सकें उनको उसको, थोड़ा सा मौका मिले ताकि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करें। सही। ओवरऑल टॉरस के लिए भी ठीक ही रहेगा। जेमिनाई के बारे में क्या कहेंगे? जेमिनाई, आपको याद होगा कि वो थोड़े से ट्रैप हो गए थे ना जी, इमोशनल नीडफुल में, बिल्कुल, कि इमोशनली वो चाह रहे थे कि उन्हें संभाला जाए, लेकिन अब चेंजेस आई हैं और उनके अंदर जो है बर्स्ट ऑफ एनर्जीज जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, और वो स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज़ सही, या थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करेंगे, सही, और जो पेंडिंग के काम थे या जिनमें वो डर रहे थे कि वो सही। किसी वजह से ख़राब ना हो, तो वो भी वो करेंगे और रिस्क लेके करेंगे, जिसको कहते हैं ना कि आउट ऑफ क्रीज जी, खेलने की वो कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस वजह से उनको कामयाबियां भी हासिल होंगी, और अमूमन लोग उनको रजिस्ट नहीं करते हैं। सही, जो मैक्सिमम नंबर किसी गैदरिंग में नजर आता है एक्टिव लोगों का, वो जेमिनाई होते हैं, ओके, जो हर किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, सही, और वो हर शोबे के अंदर जो है वो सपोर्टिंग रोल्स के अंदर होते हैं, क्लिनिकल रोल्स के अंदर होते हैं। तो इस वक्त सारे जेमिनाई जो हैं वो काफ़ी स्पीड में जो है मूव करते हुए नजर आएंगे, तो उनकी तेज़ी अच्छी रहेगी, जो काम पेंडिंग थे या जो इश्यूज आ रहे थे वो उनको हैंडल कर लेंगे। जेमिनाई जो है वो इस वक्त थोड़ा सा ओवर वर्क करेंगे, और वो किसी को खातिर में नहीं लाएंगे, जो थोड़ा सा टाइम उन्होंने वेस्ट किया था सही, और अपने आप को जो नीडी समझ रहे थे वो इमोशनल लेवल पे, उससे वो जान छुड़ाएंगे और अपने तौर पे अपने कदम खुद आगे बढ़ाएंगे। सही, तो उसमें ये कि थोड़े से क्लेशेस भी हो सकते हैं, और उनके सुपीरियर भी उनसे नाराज हो सकते हैं कि अच्छा। ये ज्यादा तेज भागना मुनासिब नहीं है। सही, जिद और थोड़ी सी हठधर्मी भी बढ़ेगी उनके अंदर। सही, हेल्थ के इश्यूज फिर भी रह सकते हैं, अच्छा। कि अगर नींद पूरी नहीं कर रहे हैं और खुली हवा से नहीं बच रहे हैं तो सीने के इन्फेक्शंस या बीमारी का खतरा वो महसूस करेंगे। तो ओवरऑल जेमिनाई का भी जो है अच्छा ही वीक निकलेगा ये इंशाल्लाह, हाँ, जाहिर है वो अब स्टैंड लेंगे चीज़ों पे और एक्टिव नजर आएंगे। एक्टिव नजर आएंगे। कैंसर के बारे में क्या कहेंगे? कैंसर के इमोशनली वो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनका भी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था सही, या कोई इंटरेस्ट रख रहे थे वो कि किसी तरह से उनको इस्तेमाल करने के लिए पैसे हासिल हों, सही, तो उसमें उनको कामयाबी होगी। होगी, उनका लोन वगैरह अप्रूव हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन या हाउस बिल्डिंग से, तो वो अच्छा नज़र आ रहा है कि उनको कुछ पैसे अवेलेबल होंगे जिसको वो सही। अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करेंगे। सही, घर के मामलात भी जो है वो नॉर्मल चलेंगे, एस्पेक्ट्स अच्छी बन रही है प्लैनेट्स की, सही, तो मजमूई तौर पे कोई प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आ रहे, और स्टडीज़ के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लग रही हैं, सोशल रहेंगे और सोशल एक्टिविटी ये करते रहेंगे, सही, और एकेडमिक या आउट ऑफ कोर्स जो दीगर उलूम होते हैं या जो शौक के टॉपिक्स होते हैं वो उसके अंदर भी इन्वॉल्व रहेंगे। अच्छा, तो एक तरह से जो तहकीकी काम करने वाले कैंसर हैं या पीएचडी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, सही, तो उनको अच्छी खबरें मिलेंगी, अच्छा, और वो उसमें कामयाबी हासिल करेंगे और उनको सपोर्ट मिलेगी। सही। तो यानी कैंसर के लिए, कैंसर के जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं उनके लिए ये है कि एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, यानी उनको कामयाबी जैसे हम मिलेगी। हमेशा कहते हैं कि चेंजेस, तो ये वीक बड़ा स्टेबल नजर आ रहा है, अच्छा, तो इसमें वो बड़े टारगेटेड रहेंगे और चेंजेस को बहुत जल्दी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अच्छा, क्योंकि कामयाबी अब नजर आ रही है और वो कुछ इमोशनल लेवल भी काफी अब कम होंगे, कम होंगे। तो बहरहाल वो बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा फुरकान साहब, आपने बताया था कि कैंसर जो है हर 27 साल के बाद हर सितारे पर एक जो है काफ़ी क्राइसिस आते हैं, और उस क्राइसिस से इस वक्त कैंसर गुजर रहा है, तो उनके मामलात का क्या कहेंगे कि अभी और कितना टाइम रह गया है इनका इस स्टार के ऊपर ये
मामलात का? असल में ये जो इसको ट्रांजिट हम कहते हैं प्लैनेट्स का, और ये सैचरन से होता है ओके, कि कुछ 3 बुर्ज ऐसे हैं जहाँ लगातार सैचरन गुजरता है, तो वो 7.5 साल का पीरियड होता है। सही। तो क्योंकि ये 27 साल के अंदर अपना पूरा टर्न पूरा करता है, पूरी जो है सूरज के गिर्द, सही। तो एवरी 27 ईयर्स पे उसी पॉइंट पे आ जाता है। सही। उसके अलावा एक मुकाम और है इसका, जो कैंसर से 8th साइन के अंदर जब ये आता है, अच्छा। उस वक्त भी इम्पैक्ट पैदा करता है, थोड़े सीरियस। लेकिन ये उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जो वीक होते हैं, जिनके मामला पहले ही डिस्टर्ब होते हैं, तो वहाँ ये वीकनेस लाता है। सही। और जो अच्छे हालात वाले लोग होते हैं, या वो पहले से चीज़ों को संभाल के रखे हुए होते हैं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। सही। लेकिन मजमूई तौर पे इसको हम एक बैड ट्रांसिट कहते हैं। अच्छा। तो वो बहरहाल गुजर रहा है वो, सही। और वो सबको फेस करना होता है। ऐसे दिन के बाद रात आती है, या बारिशें हैं, तूफान है, धूप है, तो वो सबको ये अनसीन जो है वो इश्यूज होते हैं। अच्छा, एक सवाल मुझसे किसी ने कहा था कि आप इस पर शो कर रही हैं और इस तरह से, मतलब जैसे कैंसर से रिलेटेड हैं वो जिन्होंने ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा जैसे मैं कैंसर हूँ, मेरे पास क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है, मेरे हस्बैंड तो कैंसर नहीं है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का? कि मतलब देखे, मैं अगर कैंसर हूँ और मेरा पार्टनर जो है वो लियो है या विर्गो है, व्हाटएवर जो भी, तो उस मामलात में क्या होंगे? देखें, ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस करते रहे और हमें मजीद करनी भी पड़ेंगी। कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक सोलर साइन है, कि जब वो पैदा हुए तो सन जो था वो कैंसर के अंदर मौजूद था। सही। इसलिए उनको कैंसर कहा जा रहा है। सही। उसके अलावा भी 2 अहम सेंटर्स हैं जिसको हम असेंडेंट कहते हैं, और यानी राइस कहाँ कर रहा था, यानी जमीन का वो हिस्सा किस बुर्ज के सामने था जहाँ उनकी पैदाइश हुई, उसको हम लगन कहते हैं। सही। या असेंडेंट कहते हैं। सही। उसके अलावा मून साइन, के मून किस जगह पे मौजूद था। तो ये 3 सेंटर्स होते हैं। उसके अलावा बाकी भी जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी अहमियत है। सही। तो मजमूई तौर पे देखा जाता है कि क्या पोजीशन है। अच्छा, जहाँ रिलेशंस की बात आती है तो वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, कि कोई भी लोग आपस में इस तरह नहीं मिले होते बगैर किसी रीज़न के। जैसे लोग आते हैं, दोस्त बनते हैं, तो कोई ना कोई उनका कनेक्शन होता है। प्लेनेटरी मूवमेंट्स भी ऐसी होती हैं कि कुदरत एक दूसरे को एक दूसरे के साथ लाती है। सही। जैसे शादी होने का वक्त है, या कोई फ्रेंडशिप होने का वक्त है, सही। या कोई कारोबारी मामलात हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है प्लेनेट्स रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सही। तो अगर कोई एक शख्स मुतासिर है, जैसे एक फादर मुतासिर है, तो उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो बच्चों के ऊपर भी होगा, और बच्चों के अपने चार्ट भी इस बात को शो कर रहे होंगे कि वो किस लेवल पे, उनके लेवल्स अलग अलग होंगे। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि 4 बच्चे अगर एक घर के अंदर मौजूद हैं और 3 काम करते हैं और एक नहीं करता, लेकिन वो चारों एक जैसी लाइफ को एंजॉय करते हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम फैसिलिटीज अवेल कर रहे होते हैं, तो वो एक जो थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में होता है प्लैनेट्स की, वो उन चीज़ों को अवेल कर रहा होता है। सही। तो किसी पे कम, किसी पे सख्ती। इसलिए जो साथ रहना, कनेक्शन रखना, ये बड़ा अच्छा होता है। इसी तरह कारोबार के अंदर या शादी के अंदर एक दूसरे की कमजोरियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। कि अगर एक का कोई पहलू कमजोर है, दूसरे का ताकतवर है, तो वो शेयरिंग हो जाती है आपस के रिश्ते की वजह से। सही। लेकिन ये कि रिफ्लेक्शन होते हैं, आपने सुना होगा ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए आईना होते हैं। जी बिल्कुल। और आपस में कुछ सेंटर्स कनेक्ट भी हो रहे होते हैं, जैसे सन साइन, मून साइन और असेंडेंट, इनमें से भी कोई कनेक्ट हो रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ, बच्चों के, या जो है मियाँ बीवी में, या उनमें 7th बुर्ज होता है, या इंटरचेंज ऑफ हाउस होता है। कोई ना कोई ऐसी रीजन होती है जो वो सेम सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं, अच्छे और बुरे, तो वो उन्हें साथ ही साथ फेस करना होता है। यानी कि अगर जैसे कि कैंसर जैसे इस वक्त अभी बुरे हालात में चल रहा है, जिस तरह से आपने बताया था कि उन पे क्राइसिस है, 27 साल का वो एरा इनका कंप्लीट हुआ है, तो ये मतलब जैसे अब उनके जो हस्बैंड हैं वो लियो हों, तो मतलब ये कि अगर उनकी बुराई है या मतलब वो थोड़ी सी भी क्राइसिस में, तो क्या उसको बेटर करने के लिए उनके पार्टनर का मतलब ये कि साइन का अच्छा होना जरूरी है? अगर वो अच्छा है तो वो शिद्दत कम हो जाएगी। बिल्कुल यूँ समझ लें कि अगर घर में कोई एक शख्स बीमार होता है तो बाकी सब भी सफर करते हैं। बिल्कुल। वो भी परेशानी का शिकार होते हैं। और इंसानी जिस्म में भी अगर एक उंगली में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दुखता है। इसी तरह अगर घर में एक प्यारा अगर बीमार होता है, तकलीफ में होता है, तो घर के तमाम अफराद तकलीफ महसूस करते हैं। तो वो एक दूसरे की चीज़ों से फ़ायदा भी हासिल करते हैं और एक दूसरे की तकलीफ को भी शेयर करते हैं। सही। तो ये है।
اچھا، یعنی کہ یہ ہے کہ مطلب یہ سوال اس طرح سے ان کو جواب مل جانا چاہیے کہ اگر ایک کرائسس میں ہے تو دوسرے کا اگر معاملات اچھے چل رہے ہیں یا دوسرے کے پلانٹ اگر ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو کے ایکول پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. دیکھیں اسی لیے ذائچے کو بھی میچ کیا جاتا ہے. اچھا. اور آپ دیکھیں کہ شادیوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے, ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. تو ہمارے ماحول میں اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی تانا مار دیا یا ہم پہ ایک الزام رکھ دیا کہ کہیں آپ کے اندر یہ بیماریاں تو نہیں ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میل اور فیمیل دونوں میں اس کے کچھ پارٹ موجود ہیں تو بچوں میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اسی طرح آسٹرولوجی میں بھی جو ہے وہ میچ کروا لینا چاہیے. بالکل. اچھا فرقان صاحب, بریک کا ٹائم ہوا ہے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویورز, بریک کا ٹائم ہوا ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. جی فرقان صاحب بتا رہے تھے کہ کمپیٹیبلٹی چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. آج کل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کرائیں, ہم تو پرفیکٹ ہیں, ہم تو اوکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہر انسان پرفیکٹ ہوتا ہے, ہر انسان اوکے ہوتا ہے, بٹ کمپیٹیبلٹی چیک کرنے کے لیے انسان کو اپنی آگے اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر یہ چھوٹے موٹے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں تو آئی گیس اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جی ہاں بالکل, شادی کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے. جی. اس کے علاوہ اسٹیٹس جو کلاس ہے لوگوں کی اس کے مطابق بھی ہونے چاہیے تاکہ اچھا جو ہے وہ میچ بنے. جی. اور آسٹرولوجی کیونکہ یہ انسین چیزیں ہیں, ایک آسٹرولوجر اس کو فورکاسٹ کر سکتا ہے. صحیح. تو اگر وہ بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس سے آنے والے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. صحیح. اور یہ بڑا سمپل ہوتا ہے کہ جو میں بار بار ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمارے کئی سینٹرز ہوتے ہیں, مختلف پلینٹس ہوتے ہیں جو مختلف برج کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا سن جو ہے وہ کینسر کے اندر موجود ہے اور دوسرے شخص کا مون کینسر کے اندر موجود ہے تو یہ ایک بہترین قسم کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے. صحیح. اور بہت اچھی فرینڈشپ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ والی. اس کے علاوہ آپ کو 5th ہاؤس کا فارمولا بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک شخص کے 5th ہاؤس سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طرح 7th ہاؤس ہے, پھر ان کے لارڈس ہیں, تو اس طرح وہ ایک دوسرے سے فائدہ بھی لیتے ہیں, ایک دوسرے کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. صحیح. لیکن اگر آپ بہت اچھی جو ہے کانفیگریشن بنا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور غلطیوں میں بھی کہ اگر دونوں بالکل ایک جیسے ہیں یا اپوزٹ ہیں تو وہ غلطی ورسٹ ہو جاتی ہے. بالکل. دونوں انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اور مختلف ایسپیکٹ میں سوچتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی غلطی کو بھی سنبھال لیتے ہیں. بالکل. تو بہرحال یہ کلچر ہونا چاہیے کہ بالکل ہونا چاہیے. آسٹرولوجی کے حوالے سے بھی جو وہ میچ میکنگ کریں, وہ چیک کریں کہ بالکل کروانا چاہیے کہ ان کے ستارے میچ ہو بھی رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. آگے کی پرابلم سے بچنے کے لیے اچھا ہے یہ عمل بھی. اور اس میں صرف سولر سائن نہیں بلکہ کمپلیٹ ذائچہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ سارے پلینٹس کن کن پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں. آتے ہیں اب لیو کی طرف. لیو کے لیے کیسا رہے گا یہ ہفتہ؟ لیو کے لیے بڑا زبردست رہے گا کیونکہ یہ ہوتے تو بڑے سیلف اوپینینٹڈ ہوتے ہیں, یعنی اپنے فیصلوں پہ جم جاتے ہیں, اپنی مرضی کی رائے قائم کرتے ہیں اور اس پہ جم جاتے ہیں. اور اس میں 8th ہاؤس کے اندر اب سن موجود ہے تو یہ کافی اسٹرانگلی جو ہے اچھا اس کے اوپر فوکس رکھیں گے. اوکے. تو جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا ہے یہ وہ کر گزریں گے انشاءاللہ. ہاں, اور یہ بہت زیادہ شور بھی نہیں کرتا ہے, جیسے ٹائیگر کو آپ نے دیکھا ہے. بالکل. آپ ان کے انداز سے تو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ کام اب کرنا ہے. تو وہ جو بھی معاملات ہوں تو عموماً ریلیشن شپ کے معاملات ہیں یا کچھ لوگوں کو یہ سنبھالتے سنبھالتے تھک گئے ہیں تو ان کو بھی یہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا. ان کے حال پہ بھئی اب آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. جن کی انگلی پکڑ کے چل رہے تھے ان سے کہیں گے بس اب کافی ہو گیا, اب آپ جو ہے وہ خود جو ہے وہ آگے بڑھیں. باقی ٹریولنگ نظر آ رہی ہے. اچھا. ٹریولنگ کر لیں گے یہ لوگ, چھوٹے سفر کاروباری اعتبار سے. بڑے سفر کا کیا کہیں گے آپ؟ اور بڑے سفر اس وقت ایڈوائزیبل نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ان سے وہ آؤٹ پٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو ٹارگیٹ رکھ کے جائیں گے. صحیح. بڑے سفر سے مراد یہ ہے کہ لمبے فاصلے کے سفر. ٹھیک ہے, چاہے کوئی جاب کے حوالے سے کہیں باہر جانا چاہے نہیں, وہ ایڈوائزیبل نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ اس میں پیسوں کا خطرہ ہوگا. لیکن چھوٹے ٹرپس ہیں جیسے انٹر سٹی ہیں یا اگر بیرون ملک بھی جا رہے ہیں تو کم فاصلے والی جگہوں پہ جو چھوٹے مڈل ایسٹ وغیرہ.
हाँ 2-2.5 घंटे की फ्लाइट लेके चले जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो सही। शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो तो फ़ायदा देंगे, लंबे सफ़र उनको फ़ायदा नहीं देंगे। नहीं आएंगे। चलें, बाकी ये कि ये नई बात किसी के सुनने को फ़िलहाल तैयार नहीं होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम करेंगे। बिल्कुल अटल रहेंगे, जमे रहेंगे, यही करना है, ये सोचा था यही करना है। जी जैसे कि हमेशा की तरह जिद्दी होते हैं वो, बस अपनी बात ही मनवानी होती है उन्होंने। ज़िद्दी नहीं, अमूमन वो राइटफुल होते हैं और वो असल में अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं। सही ऐसा नहीं है कि वो किसी के सर पे रख के किसी और का नुकसान करा दें। सही। तो अमूमन लियो के अंदर ये वो ये quality कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है, अब इसमें नफा हो नुकसान हो मुझे पता है। रिसोर्सेज भी उनके हैं, मेहनत भी उनकी है, तो बिल्कुल। वो लेते हैं किसी हद तक, लेकिन इतना नहीं होता है कि दूसरे की सारी चीज़ों को वो ख़राब करा दें। बिल्कुल तो इसलिए उनका राइट भी बनता है और वो इसको करते भी हैं, और अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो जाए तो वो उसको अच्छी तरह सहते भी हैं, सही क्योंकि उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। मौजूद होती हैं। राइट, उनको आसानी से लोग चूज़ करते हैं अच्छे कामों के लिए। सही। विर्गो के लिए क्या कहेंगे? विर्गो के बड़ा ही बेचैन है, तो तनकीद और फिक्र व खप, तसस्सुस, तजस्सुस, सही। जल्दबाजी, तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होंगे वो। अच्छा, वैसे विर्गो अमूमन जल्दबाज तो नहीं होते, बड़ा सोच समझ के फैसला हाँ, करते जब हैं। तजस्सुस उनके अंदर पैदा हो जाता है और वो किसी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वो अच्छा। जल्दबाज होते हैं। जैसे आप देखें ना, जो किसी शौक में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें अगर कोई चीज़ लेनी होती है तो वो पागल हो जाते हैं कि ये तो मुझे अभी ही जाके लेके अभी आना ही है, लेनी है। वरना ये हाथ से ना निकल जाए। जी, ये तो है। हाँ, तो वो जब कोई टारगेट पे चले जाते हैं तो फिर वो जल्दबाज भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी जल्दबाजी ऐसी नहीं होती कि वो चीज़ों को ख़राब करें, लोगों को नाराज़ करें। वो अपनी हद तक ही वो एंजाइटी शो कर रहे होते हैं, सही। दूसरों को उसमें कोई ख़ास इन्वॉल्व नहीं करते। अलबत्ता उनसे जो नाराज़गी का सबब है और इस हफ्ते को ज़्यादा लग रहा है वो ये कि चीज़ों की तकरार करना, अच्छा। बार बार बहस करना या दावे करना या एक ही चीज़ को रिपीट करना बार बार, सही। कि अगर वो किसी बीमार के तीमारदार बन जाते हैं तो बड़े प्रॉब्लम में डाल देते हैं उसको, बार बार बताते हैं कि ऐसे दवा खानी है, ये परहेज करना है, सही। जो कि 1 या 2 बार काफ़ी होता है। तो ये उनका मिजाज है, और मरकरी की पोजीशन ऐसी है कि एक उबाल आया रहेगा इनके मिजाज के अंदर, जो इनका अपना नेचर है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे जाएगा। अग्रेसिव होंगे। हाँ, तो ये बार बार शो करेंगे कि हम विर्गो हैं, अच्छा, तो ये मिजाज उनके अंदर रहेगा। रूलर प्लेनेट जो है, जो हाकिम सैयारा होता है, वो इन चीज़ों को शो कर रहा होता है। सही। अगर ज़ोहल आ जाता है किसी ऐसी पोजीशन पे और वो विर्गो के ऊपर असरअंदाज होता है तो वो फिर कूलनेस दे देता है, सही। फिर वो उसको रिसर्च वर्क की तरफ ले जाता है। ओके। ठीक है, वो उसको कवर करने की तरफ ले जाता है कि वो कवर करके अपने टारगेट पूरे करते हैं। लेकिन अगर ऐसा असर ना हो और मार्स आ जाए या मरकरी आ जाए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा सीमावी फितरत हो जाते हैं, अच्छा। पारे की तरह, अच्छा। कि बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं और एक काम करने से पहले 10 लोगों को बता रहे होते हैं, बार बार प्रोसीजर दोहरा रहे होते हैं। तो इनको एक गाइड की ज़रूरत रहती है। कुछ खास केसेस में कोई अच्छा प्लेनेट आ जाए तो अमूमन लोग इनको नीचे ही रखते हैं। अच्छा। पूरा एक क्लरिकल स्टाफ है ना, आप देखें कि ऑफिसर्स आते हैं और वो प्रोमोट होते होते कहीं से कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग टेबलों पे बैठे होते हैं, तो कोई 20 साल से और कोई 25 साल से, जी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। वो सबके मुशीर होते हैं और बहुत अच्छे मुशीर होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये तलब नहीं होती कि वो अपने आप को प्रोमोट कर लें। अगर प्रोमोट भी होते हैं तो वो डेजिग्नेशन में हो जाते हैं, रैंक में हो जाते हैं, लेकिन काम वही क्लरिकल कर रहे होते हैं। तो इसमें रोल है सबके। अगर वो रियलाइज कर लेते हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए, तो वो अपने आप को अगर साबित करें, बेहतर करें, तो वो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल विर्गो के लिए भी इतना बुरा नहीं है, जो बुरा भी नहीं चीजें है, हैं राइट, वो उसी तरह से ही चलती रहेंगी। स्कॉर्पियो नहीं, अब लिब्रा है। लिब्रा थोड़े से लेजी रहेंगे, हो सकता है कि इस वीक भी लेजी रहेंगे। हो सकता है कि कुछ उनको जो है सेहत का इशू आए, कोई थकन का वो शिकार हो रहे हों, या जो उन्होंने पिछले दिनों में इमोशंस रिलीज किए थे वो किक बैक हो गए हों। बिल्कुल। कभी हमें पता नहीं चलता है ना, और हम ज्यादा बोल जाते हैं और वो जज्बात के तहत होता है। बिल्कुल। वो बाद में सोच रहे थे नहीं यार ये नहीं कहना चाहिए था, ये क्यों कहा, इस तरह की बातें। तो लैंग्वेज के खाने में, यानी ज़बान के खाने में एक नया सैयारा असरअंदाज हो रहा है। अच्छा। उसमें ये कि गलत बात कह देना या कोई ऐसी बात कह देना कि जिससे दूसरे नाराज़ हो जाए, सही, तो उसके खतरात
नजर आ रहे हैं। और ये पोजीशन जो है वो थोड़ा सा पैसे को भी रोक रही होती है, अच्छा, और यानी आमद को पैसे की, तो ओके, अखराजात बढ़ जाते हैं और इनकम कम हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो भी रुक जाता है। रुक जाता अच्छा, आप ये देखें कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं कि जब लोगों की जेब में पैसा होता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो उनकी ज़बान भी शीरी हो जाती है, बिल्कुल, और अगर उनका पैसा रुक रहा होता है तो वो चिड़चिड़े हो जाते चिड़चिड़े हैं, हो और उनसे जाते अगर हैं, अच्छी बात भी बिल्कुल, करो तो वो हाँ, एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं। तल्ख। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो प्लेनेट यानी जो बुर्ज हमारी ज़बान को कंट्रोल कर रहा है वही हमारे फाइनेंस को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये थोड़े से टची रहेंगे, टची रहेंगे, तो इनसे छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं रहेगा। सही, और ट्रेवलिंग ये करेंगे, घर के अंदर कुछ बेहतरी का सोचेंगे, सही, सोशलाइजेशन होगी, और रिलेशनशिप को भी ये इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, और ये थोड़े से लोनली रहने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये देखें सब में ये चला आ रहा है कि एक हवा चलती है तो सबके लिए चल सभी जाती के लिए है, चलती, जैसे अभी एरीज का भी आपने तो सब बताया, अपने मिजाज से हटके ही कुछ ना कुछ कर रहे कुछ हैं। ना कुछ कर तो रहे हैं, ये भी इनका भी नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा चाहेंगे कि हमें अलहदगी मिले, सही, थोड़ी खामोशी मिले, जिसमें कुछ इश्यूज हो गए तो उनको हम रिजॉल्व कर लें, रिजॉल्व करें। तो अच्छा रहेगा। बहरहाल अच्छा, ये ओवरऑल लिब्रा भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो टफ मामला नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो अलबत्ता उनकी जो एक जंगो जदल चल रही थी उनके खाना माल में, कारोबारी मामलात में, जी, वो अभी बरकरार रहेगी, बल्कि और तेज हो जाएगी। अच्छा, तो फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं उनके एकदम खुल के सामने आएंगे, अच्छा, और उनके एफर्ट्स भी बढ़ जाएंगे कि अगर उनको रिकवरी करनी है, उनको कोई चीज़ सेल करनी है, या जो है वो किसी को कन्विंस करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो उसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद करेंगे, अच्छा, वो कोशिश चैलेंजिंग हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो जो एक उन्होंने बेस पकड़ा था, जो सोचा था उन्होंने, थॉट जो आई थी, उसमें वो एक्सेलरेट हो गया है। अच्छा, वो चलते चलते आप देखें ना कि जब भागते भागते वो स्पीड आ जाती स्पीड है, आ जाती तो है, वो उस स्पीड को बरकरार रखेंगे। सही, लेकिन साथ साथ ये हुआ है कि सन की पोजीशन ख़राब हुई है, तो वो फेवर जो हाई ऑफिशियल से या सरपरस्तों से या फादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट नज़र आ रही है। अच्छा, तो बहरहाल ये अपनी कोशिशों को भरपूर तरीके से जारी रखेंगे, सही, और डिजीज हो सकते हैं, अच्छा, यानी बीमारी आ सकती है इनको, जो इस वक्त महसूस हो रहा है मार्स की वजह से और केतु की वजह से, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है ना, लोअर इंटेस्टाइन्स हैं, कि इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए या सही, आंतों के अंदर कोई इशू आ जाए, अच्छा, तो वो इस तरह की इनएक्टिविटी हो जाए पेट के अंदर, तो वो एक तो अल्टीमेट गुस्से या जल्दबाजी की वजह से भी होती है, अच्छा, या आपने खाने पीने में अगर एहतियात नहीं की तो उसकी वजह से भी हो सकती बिल्कुल, है। तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से ये चीज़ें ये फेस चीज़ें करेंगे। नॉर्मल रहेंगी, मतलब जी। नॉर्मली ये चीज़ें रहेंगी स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए कोई इस तरह की कोई इसके क्या मामलात रहेंगे ट्रैवलिंग के? इनको भी जो है वो एक तो सुर्ख रंग इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये फायरी टेम्परामेंट तो है, लेकिन बेसिकली ये वाटरी हैं, तो इनको मैं तशबीह देता हूँ कि ये बहता हुआ लावा है, ये भड़कती हुई आग नहीं है, क्योंकि है मार्स जो कि लोहे के ऊपर, आग के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो ये अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं। सही। स्कॉर्पियो के लिए भी ऐसी कोई ओवरऑल कोई टफ टाइम नहीं है, कोई ऐसा मतलब नहीं हाँ, है? अगर सदका करना चाहते हैं तो सुर्ख रंग की चीज़ों का ये सदका करें। किसी भी दिन? मंगल के दिन। मंगल के दिन? मंगल का दिन उसके लिए खास है। किसी भी टाइम? सबसे बेहतरीन टाइम जो है वो पहली साथ होती है सुबह, जैसे सूरज निकलता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो उन 12 घंटों को, यानी तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक हम 12 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अच्छा। तो हर हिस्सा एक साथ कहलाता है। ओके। तो क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, तो एक साथ 1 घंटे से कम की हो जाती है। सही। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं तो एक साथ 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाती है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल आवर कहलाता है। ओके। और इसको जो है साद भी कहते हैं। यानी कि अगर सुबह 6 बजे सूरज तुलू हो रहा है तो शाम को 6 बजे जो है वो गुरूब हो जाएगा। तो टोटल 12 घंटे हो 12 घंटे, उसको आप 1 घंटे में डिवाइड करें, मतलब उस 12 घंटे के अंदर किसी भी घंटे में आप जो है वो कर लेते। नहीं, पहले घंटे में। पहले घंटे में।
ओके, इसी तरह अगर 6 बजे सूरज निकल रहा है और 7 बजे, तो इसका मतलब है 13 घंटे का 13 दिन हो घंटे। गया। अब उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो एक साथ फिर Early। 1 घंटे और कुछ मिनट की हो जाएगी। तो वो टाइम होता है जिसमें सदका खैरात किया जाता है। ओके, यानी पहला जो आर होगा जो है वो उसमें आपको जो है करना होगा सदका अपना। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन है जो अच्छा है, समझ ली। ओके, वो क्या स्कॉर्पियो के लिए भी कोई ऐसी खास कोई ऐसी बात नहीं है? हाँ, रूटीन की चीजें, रूटीन कोई की चीजें, खतरे की चीज नहीं कोई है ऐसी खतरे की जिसमें चीज हम नहीं इनको है। कहें कि भाई मोहतात रहें या फेब्रुअरी सभी बचें। के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा ही साइन देकर जा रहा है। स्कॉर्पियो के बाद कौन सा स्टार है? सेगिटेरियस है, इन लोगों को पकड़ के बिठाना पड़ेगा, इनका जोश और जज्बा बड़ा जोरदार अच्छा। रहेगा, और टूरिज्म भी कर रहे हैं और एडवेंचर तो भी कर एक्टिव रहे हैं रहेंगे और काफी। स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं। सही। तो ये अक्सर कोई ख़ास रीज़न के बगैर भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं कि आप देखें कितनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं और लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त सेगिटेरियस जो है वो हर फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर शामिल होना पसंद करेंगे। ठीक है फुरकान साहब, इन एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हुआ है जी व्यूवर्स, ब्रेक का टाइम हुआ है, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूवर्स, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, आपने बताया सेजिटेरियस वाले बड़े एक्टिव रहेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। जी, और सख्त किस्म के काम करेंगे दुनिया में बेहतरी लाने के लिए। अच्छा। और अपने मामलात भी संवारने के लिए। सही। तो ये कि इनके ऊपर लोग पाबंदियां लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। ये ऐसा होता है कि एसेंडेंट के अंदर अगर कोई पावरफुल प्लेनेट आ जाए, खासतौर पे मार्स है या जुपिटर है जो कि फायरी है और इसका अपना मिजाज भी फायरी है, सही। या उस पर भरपूर तरीके से नजर डाल रहे हों, सही। देख रहे हों प्लेनेट, तब ये इस तरह की चीजें होती हैं। ओके। जब ये कैफियत होती है तो जो भी बुर्ज की खासियत होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और वो उसका भरपूर इजहार कर रहे होते हैं। अच्छा। तो सेगिटेरियस के अंदर ये चीज नजर आ रही है। माली मामला तो अब रफ्ता रफ्ता ही बेहतर हो रहे हैं इनके, सही। लेकिन उसकी ये इतनी केयर नहीं करते हैं। जैसे भी हालात में हो ये अपने शौक जो हैं वो पूरे कर रहे होते लेते हैं। हैं। तो अगर आप इनसे चाहें कि कोई एक्शन की डिमांड करें ना कि भाई आपने ये करना है, तो आपको हैरत होगी कि वो कर चुके होते हैं। सही। कि जैसे ही आपने सोचा या उन तक बात गई तो वो एक्शन बिल्कुल, कर चुके होते हैं। कर कहते हैं चुके लो होते भाई हैं। ये काम तो अब आगे की बात हमें सही। बताओ। काफी एक्टिव रहते हैं ना हाँ, तो हर ये खुद चीज लकी में। भी हैं और मैं उन लोगों को भी लकी कहूंगा, खासतौर पे इस हफ्ते में जिनके दोस्त सेगिटेरियस हैं। अच्छा। तो वो उनको साथ लेके चलेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। ओके, ग्रेट। कि जैसे कुछ कमजोर लोगों को भी साथ ले लेते हैं ना कि अगर तुमसे नहीं भी होगा तो तुम तो हाथ पकड़ के भाग बिल्कुल। लेना, हाँ या खेल लेना, हाँ, हम हम तुम्हें संभाल 2 बार लेंगे। आउट दे देंगे, हाँ मतलब या बच्चों को देखें। बिल्कुल। तो ये बहुत बेहतरीन लोग हैं जो लोगों को इनकरेज करते हैं इनकरेज करते हैं। और अपनी ताकत शेयर करते हैं। हाँ, ये शेयर करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को, अपने सक्सेस को, और अपने कमज़ोर साथियों को भी साथ लेके चलते हैं। सही। तो ये हफ्ता तो बड़ा अच्छा रहेगा कि फुल ऑफ एनर्जी होंगे, फुल सही। ऑफ रिसोर्सेज होंगे। तो सही। उसमें यकीनन जो इनके दोस्त हैं उनके साथ ये इसको शेयर करेंगे। ट्रेवलिंग भी जो है वो अच्छी नज़र आ रही है, और अलबत्ता हेल्थ के इश्यूज हैं लेकिन ये इतना खातिर में नहीं लाएंगे, और छोटी मोटी जो बीमारियां होंगी वो एक्टिविटी के दौरान ही आएंगी और चली भी जाएगी। ख़त्म हो जाएंगी। कि ये जितना वर्क करेंगे, एक्सर्शन करेंगे, उतना ही इनको फ़ायदा हासिल होगा। सही। सेजिटेरियस के लिए भी अच्छा ही है ओवरऑल, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। इवन एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। इवन जो छोटी मोटी बीमारियां जो आने वाली भी होंगी वो भी उस एक्टिविटीज़ में इतने वो मतलब एक्टिव होंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेजिटेरियस के बाद कौन सा कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन जो है वो थोड़े सुस्त रवि का शिकार रहेंगे कि वो कहेंगे कि यार अभी तो खाली बैठ के जो है ना वो सोचने दें, या अगर वो कोई काम कर भी रहे होंगे तो बड़े एब्स्ट्रैक्ट मैनर में कर रहे होंगे। यानी अच्छा। वो वैसे तो रिवायती तरीकों को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो कुछ अजीब अंदाज के अंदर जो है किसी पेचीदगी को जाहिर करके वो काम कर रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि वो इतने होपफुल नहीं होंगे रिजल्ट के हवालों से। सही। तो लेकिन वो करना भी चाह रहे होंगे, तो वो चाहेंगे कि हम कोई भी अपने तरीके से करेंगे ताकि हमें नाकामी ना हो, सही। या हमारी रिसोर्सेज जो है वो ज़ाय ना हो। खाना माल जो है वो शो कर रहा है कि दोस्तों पे इनका खर्चा होगा। अच्छा। चाहे किसी को उधार देना पड़े या किसी की जो है वो
تیمارداری کرنی پڑے اچھا یا اپنے گھر پہ مہمانوں کو ٹھہرانا پڑے. ہوں اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو ڈیزیز ہیں ہوں اس کا شکار ہو سکتے ہیں. انفیکشن اچھا. ہے, چیسٹ انفیکشن ہے, تو ان کا تھوڑا سست روی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزرے گا. اچھا تو چاہیے ہمیں کہ انہیں یہ رائے دیں کہ بھائی کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کریں, کچھ ایکسرسائزز وغیرہ کریں صحیح جس سے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین ہو, مینٹین کیونکہ رہے, جتنی سستی اختیار کریں گے اتنی ہی سستی جو ہے سستی وہ اور مطلب بڑھتی ہی چلی جائے گی. تو پھر وہ لیتھارجی پیدا ہوگی یا ڈپریشن میں جائیں گے. تو مجموعی طور پہ تو اچھا تو وقت نہیں ہے, لیکن کوئی اتنا سیریس نہیں ہے کہ وہ گزرتا ہے تو اس کو گزرنے دیں. کیپریکون کے لیے بھی اچھا ہی ہے, اور بس تھوڑا سا لیزی ہے, لیزی ویک رہے گا, یہ تھوڑی سے سست انداز میں رہے گا, تھوڑے سے بیماری کے چھوٹے موٹے سے معاملات ہوں گے. خیال رکھنا ہے آپ کو, یہ سبھی لوگوں کو ہم بار بار کہتے ہیں اپنا خیال رکھیں. اس وقت موسم بھی بہت سرد چل رہا ہے, اپنا ہینڈ سینیٹائزر, ماسک, یہ سب چیزوں کا یوزیج بالکل رکھیں آپ لوگ. ایکوریس کا برج ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ میں ان کو کہتا ہوں بہت زیادہ انسانیت پسند یہ برج ہے. اور اس وقت جوپیٹر کا اثر بھی ایسا آ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ ان کی یہ حس بڑھی ہوئی ہوگی کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دوسروں کے لیے خرچ کر دیں. صحیح. اور یہ عموماً لوگوں سے وعدے بھی کر لیتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے, لیکن ان کے اندر بھی ایک روایتی سستی موجود ہے. اچھا. اور کسی سے کچھ مانگنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, یا وہ ایفرٹ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کسی اور کو دعوت دینا کہ شریک ہو جانا. اچھا. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کام کرتا دیکھ کے دوسرے لوگ انسپائر ہو کے ہمارے ساتھ آ جائیں. تو ان کے ایکسپریشنز اتنے اچھے نہیں رہیں گے. صحیح. یہ اس ہفتے کے لیے بتا رہا ہوں, تو اس سے ڈیمیجز ہوں گے. اچھا. اور یہ اپنے وعدے پورے نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے ریسورسز تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں. اور یہ بھی وہ زحل کی ٹرانزٹ کی اس خراب اسپیس میں سے گزر رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ان کی امیدیں پوری نہیں ہو پائیں گی, وہ خاص طور پہ دوسروں کو سپورٹ کرنے کی. اچھا. البتہ جب یہ اسٹریس کے زمانے ہوتے ہیں تو اسپریچول گروتھ اچھی ہوتی ہے. جب وہ ڈپریشن آتا ہے یا اینزائٹی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ سے اچھی لوگ لگا لیتے ہیں. بالکل. اور ایک ون پوائنٹڈ ہو جاتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر, لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو کوئی اسپریچول پریکٹسز کرتے ہیں تو ان کو ایک فریڈم مل جاتی ہے کام کرنے کی, تو اس میں ان کو کامیابی ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ شناسی, لوگوں کے کریکٹر کو جاننا, جب یہ فارغ وقت میں بیٹھ کے اس پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ ایک ٹف وقت ہے ان کے لیے جو گزر تو رہا ہے, اور یہ وقت بھی یہ سمجھیں کہ کوئی مومنٹ نہیں, یہ ہفتہ بس ایسے ہی گزرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو ایکویریس کے لیے بھی اوور آل اچھا رہے گا, بس ان کا بھی تھوڑے معاملات تھوڑے سے لیزی رہیں گے, تھوڑا سا مطلب ان کو احتیاط, یہ وقت بس ایسے ہی گزر جائے گا. اچھا, تو اب آتے ہیں پائسس کی طرف. پائسس کے کنیکشن بھی اس وقت ایکوریس سے بڑے ٹپیکل قسم کے لگ رہے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا. تو یہ بھی اسی قسم کے جذبات کا شکار رہیں گے. انسانیت ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہے. اچھا. لیکن یہ ٹیکنیکل نہیں بلکہ جذباتی بنیاد کے اوپر جاتے ہیں. ایکوریس اور ان میں یہ فرق ہے کہ ایکوریس اتنے ایموشنل نہیں ہوتے ہیں, وہ ٹیکنیکل چیزیں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھوکا ہے یا اس کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں یا نہیں ہے, اور وہ سچائی تک جا کے پھر ایکشن لیتے ہیں. اچھا. لیکن پھر بھی ان کے ایکشن اتنے پاورفل نہیں ہوتے. اچھا, پائسز یہ سب نہیں دیکھتے ہیں, لیکن کوئی لمحہ انہیں جذباتی کر جاتا ہے تو وہ کر گزرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرنی ہو. صحیح. تو وہ کافی جذباتی موڈ کے اندر رہیں گے. تو ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ جذباتی تو مدد تو کریں, لیکن بالکل قربانی کا بکرا بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کی مدد کا ناجائز فائدہ حاصل کر لے, اور بعد میں آپ کو افسوس ہو کہ آپ اگر کسی واقعی حقدار کی مدد کرتے تو وہ اچھا رہے گا. گھر کے اندر تھوڑے سے ایشوز رہیں گے, ریزسٹنس آئے گی کام کے اندر. ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. علاوہ یہ کہ سردی سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. ٹریولنگ ہوگی, نئے دوست بنیں گے. صحیح. تو مجموعی طور پہ اچھا ہے. صرف یہ کہ مدد کے چکر میں آ کے جو ہے وہ کچھ اپنے لاسز کرنا, اس سے یہ گریز کریں, تھوڑا سا گریز کریں. تو اوور آل جو فیبرری کا جو اینڈ چل رہا ہے اس میں
تقریباً کوئی اتنا کوئی ٹف ٹائم نہیں کسی کا, بس ہلکا پھلکا سے جو چھوٹا سا مطلب یہ کہ احتیاط کرنا ہے, کسی کو تھوڑا سا غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ بیماریاں ویسے ہی بہت ہو رہی ہیں, ہر گھر میں ہر بیمار ہے کوئی نہ کوئی, تو بچے بوڑھے سارے, تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, بہت سارا یوزیج رکھنا ہے آپ نے اپنے ماسک کا, ہینڈ سینیٹائزر کا. اس کے علاوہ آپ اپنا ہاتھ ملانے سے گریز کریں. اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں دور سے ہیلو کر لیں, دیٹس اوکے, لیکن یہ کہ ہاتھ ملانا, گلے ملنا, اس چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کیجئے آپ لوگ. اور کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بس ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں, کیونکہ تنہائی اب قانون بن گیا ہے, بالکل تو اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. بالکل کہ اگر اکیلے بھی کسی پارک میں چلے جاتے ہیں یا ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے, اس کا فائدہ حاصل کریں. اور پائسس کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ اگر وہ صبح یا دن کے وقت میں ساحل سمندر پہ چلے جائیں یا اکیلے بیٹھ کے کوئی میوزک سنیں, تو اس سے ان کو انرجی ملے گی, ان کی بیٹریز چارج ہو جائیں گی. بالکل. جی فرقان صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم ملیں گے اور باتیں مزید ڈسکس کریں گے. جی ویورز, ہوپ کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے, آپ فرقان صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو کامنٹ سیکشن پہ جا کے یوٹیوب پہ وہاں پر آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ لکھ کر اپنا سوال لکھیں. نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو سوال شامل کریں گے. اپنی ہوسٹ یاسمین الطاف اور ایسٹرولوجر فرقان حیدر صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.